اس پروگرام کے اخراجات جو ایسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام روزمرہ زندگی کا لطف اٹھانے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ میرے دل میں ایک بات ہے جسے میں آج آپ کو بتانے والی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں جو کہ اندر سے کسی نہ کسی طرح دکھی ہیں اور انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اور میں جانتی ہوں کہ دل دکھنا کیسا ہوتا ہے جب انسان ذہنی اور جذباتی طور پر دکھی ہو اور آپ کسی بات کے لیے پریشان ہوں اور ذہن وہاں سے ہٹا نہیں پا رہے، کسی نے آپ کو رد کر دیا ہے یا آپ کی زندگی میں کوئی بڑا نقصان ہو گیا ہے اور دکھ اور تنہائی ہے۔ اسی بارے میں آج اور کل آپ سے بات کرنا چاہوں گی، اور یہ کچھ ایسا ہے کہ ایک طرف تو دکھ کے عمل سے گزرنا فطری بات ہے، لیکن اگر آپ اسے لمبے عرصے تک چلتا رہنے دیں تو یہ آپ کی زندگی میں ایک بڑا اور سنجیدہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں آج آپ کو حوصلہ دے پاؤں گی، اور میں ایک شاندار حوالے سے شروعات کرنا چاہتی ہوں۔ دوسرا کرنتھیوں پہلا باب 3 اور 4۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے۔ کیا بات ہے، وہ ہماری سب مصیبتوں میں ہم کو تسلی دیتا ہے، تاکہ ہم اس تسلی کے سبب سے جو خدا ہم کو بخشتا ہے ان کو بھی تسلی دے سکیں جو کسی طرح کی مصیبت میں ہیں۔ اب غور کریں، دیکھیں، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ خدا ہمیں تسلی دیتا ہے، لیکن وہ فقط ہمارے لیے ہمیں تسلی نہیں دیتا، بلکہ اس لیے بھی کہ جب ہم ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو دکھی ہیں تو ہم وہی تسلی ان کو بھی دے سکیں جو تسلی خدا نے ہمیں دی ہے۔ اور یہی کچھ میں آج یہاں کرنے کی امید کرتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں آپ جانیں، اگر آپ دکھ میں ہیں تو خدا کو فکر ہے اور ہمیں فکر ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یقیناً آپ درد میں تنہا محسوس کرتے ہیں، میں سمجھتی ہوں، لیکن میری دعا ہے کہ آج کا دن آپ کو خوشی اور مستقبل کی خاطر امید سے بھر دے۔ دوسرا کرنتھیوں 4:18 میں، جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ پولوس کہتا ہے، صرف انہی چیزوں کو نہ دیکھیں جو جسمانی آنکھوں سے نظر آتا ہے، بلکہ ایمان کی روح سے ان تمام اندیکھی چیزوں کو دیکھیں۔ اور پتہ ہے، سچ دراصل یہ ہے کہ روحانی عالم میں ان باتوں کے مقابلے میں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، اندیکھی باتیں زیادہ ہیں۔ میں آج صبح سوچ رہی تھی کہ ہم سب کس طرح اس زمین پر رہتے ہوئے چھوٹے بڑے منصوبے بناتے ہیں، اور ہم مستقبل کی ہر بات کا حساب لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں کیا ہوگا اور وہاں کیا ہوگا۔ اور خدا کا منصوبہ اس قدر حیران کن ہے ہم سب کے لیے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ رکھیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کے مشکل ترین وقت سے گزر رہے ہیں اور آپ کو کوئی راہ نظر نہیں آ رہی کہ آپ پھر سے خوشی کا منہ دیکھ پائیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا کا منصوبہ آپ کے لیے بھلا ہے، اور اگر آپ اس کا یقین کریں کہ آپ جو کچھ بھی پاتے ہیں وہ خدا پر ایمان رکھنے سے پاتے ہیں۔ ہم سب خدا سے اس کے وعدوں پر ایمان رکھنے سے پاتے ہیں۔ دراصل لفظ پانا کا مطلب یقین کرنا، اور لفظ یقین کا مطلب قبول کرنا ہے۔ سوچا ہے آپ کی تکلیف کتنی بھیانک ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ آپ امید رکھیں کہ حالات بدل سکتے ہیں اور بدلیں گے، اور ایک روشن مستقبل آپ کا منتظر ہے۔ آپ کو تنہا ہونے یا تنہائی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے آپ کو لوگوں کی بھیڑ میں بھی تنہا محسوس کر سکتے ہیں اگر آپ شرمیلے اور ڈر سے سہمے ہوئے ہیں، اور شاید کوئی آپ کے پاس آ کر آپ سے بات نہیں کرتا، تو ابلیس بہت جھوٹ بول سکتا ہے کہ لوگ محبت نہیں کرتے، پرواہ نہیں کرتے، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ آپ کو اوروں کے ساتھ رہتے ہوئے مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ آپ کے متعلق نہیں جانتے اور آپ ان سے کھل کر بات نہیں کرتے، آپ دکھی ہیں، لیکن وہ آپ کے آس پاس ہنستے کھیلتے اور پر لطف ہوتے ہیں، اور آپ تنہا ہیں۔ تنہا ہونے کے لیے آپ کو اکیلا ہونے کی ضرورت نہیں، اور اکیلے رہ کر بھی آپ تنہا نہیں ہو سکتے۔
मैं ये दोनों बातें दोहराना चाहूंगी। तन्हा होने के लिए अकेला होना जरूरी नहीं, और ना ही ये कि अकेला शख्स तन्हा ही हो, क्योंकि सच ये है कि हम कभी तन्हा नहीं, क्योंकि खुदा कहता है वो कभी हमें ना छोड़ेगा, ना हमसे दस्तबरदार होगा। मैं समझती हूँ कि हम कुछ ऐसा चाहते हैं जो दिखाई दे और जिसे हम छू सकें, लेकिन अगर अकेले होने की वजह से आप तन्हाई का शिकार हैं तो आपको खुदा से अपने लिए रहनुमाई मांगनी चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। पता है, कभी जब हम तकलीफ में होते हैं हम चाहते हैं कि हम टेक लगाकर बैठें और कोई और हमारे लिए आकर कुछ करे, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि चाहे आप जितने भी अकेले हों, आपके आसपास हमेशा ऐसे लोग रहते हैं जो उतने ही अकेले होते हैं, और एक काम जो आप कर सकते हैं ये है कि किसी और शख्स की मदद करें। लेकिन आए दुख और तन्हाई के असबाब और वजूहात पर कुछ बातें करें। मुझे बताया गया कि रंज और तन्हाई आज हमारे माशरे के मसाइल में से दो बड़े मसाइल हैं, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए तो दुखी होना फितरी बात है और ये जरूरी है। अगर आप कभी खुद को इसकी इजाजत नहीं देते तो आपके अंदर दर्द के अंबार लग सकते हैं जो कि बहुत तरह से तकलीफ दे होते हैं, लेकिन सेहतमंद अंदाज से दुख मनाना मुख्तलिफ है, बजाय इसके कि दुख की रूह आपकी जिंदगी को निगल जाए, जबकि आप इस रंज की कैफियत में हर वक्त रहते हैं। और ये बड़ा दिलचस्प है कि पुराने अहदनामे के मुताबिक उन्हें दुख मनाने के लिए दिनों की एक मखसूस तादाद दी जाती थी जब उनका कोई नुकसान होता था। इसके बाद उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ना होता। यहाँ तक कि खुदा ने सैमुअल नबी से कहा, जिसने साउल को बादशाह होने के लिए मसा किया, जब साउल नाकाम हुआ तो खुदा उसे बादशाह बनाने से मलूल हुआ और उसे वो मकाम उससे वापस लेना पड़ा। तो सैमुअल ने साउल की जिंदगी पर काफी मेहनत की थी और वो उसके लिए बहुत मायूस था और दुखी था और साउल पर मातम करता था। और पहला सैमुअल 16 में खुदा ने सैमुअल से कहा, तू कब तक साउल के लिए मातम करता रहेगा? मैंने उसकी जगह एक नए बादशाह को मसा किया है कि उसकी जगह ले। सो खुदा वाज़े तौर पर उसे बता रहा था कि अब वक्त है कि तू उसे भूल जाए और जो मंसूबा मैं अब तक रखता हूं उस पर काम किया जाए। और दूसरी सूरत हाल या मिसाल हमें इस्तिस्ना में मिलती है जहां मूसा वफात पा चुका है और लोगों को 30 रोज तक उस पर मातम करने की इजाजत दी गई है। और 30 रोज खत्म होते ही खुदा ने यशवा से कहा, मूसा मर चुका है, वक्त है कि आगे बढ़ा जाए। अब मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपने अपने किसी प्यारे को खो दिया है तो आपके पास सिर्फ 30 दिन हैं कि आप सदमे से बाहर निकल आएं। लेकिन मुझे लगता है कि ये दिलचस्प है कि खुदा ने उनके मातम के वक्त पर एक हद मुकर्रर की, और मेरा ख्याल है ये हमारे लिए पैगाम है कि आप मुसलसल और मुसलसल और मुसलसल ऐसा नहीं कर सकते। कोई आज सुबह मुझसे अपने वालिद की वफात के मुतालिक बात कर रहा था और उनके वालिदैन की शादी को 65 बरस बीत चुके थे। ये एक लंबा अरसा है साथ रहने के लिए। और वो मुझे बता रहा था कि उसकी वालदा के लिए ये कितना मुश्किल था और उसके डैड को गुजरे हुए 4 माह हुए थे। उसने बताया, लोग कहते हैं कि तकरीबन 1 साल लगता है। मैं समझ सकती हूँ, और तब भी ऐसे लम्हात होंगे कि जहाँ हालात आपको किसी की याद दिला दें जिसे आपने खो दिया, या कोई ऐसी बात किसी ऐसे वक्त पर कह दे और आप फिर से तन्हाई और दुख का शिकार हो जाएं। ये उसकी माँ के लिए कितना मुश्किल था। जो बात मैं चाहती हूँ कि आप याद रखें यह है कि अगर जिंदा हैं और सांस लेते हैं तो खुदा का आपकी जिंदगी के लिए मंसूबा है और उसका आपकी जिंदगी के लिए एक मकसद है, और आप उसे ऐसी बातों में उलझ कर खोना नहीं चाहते जो कभी थी और फिर कभी ना होंगी। आमीन। ठीक है, लोग अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं क्योंकि वो बेहद शर्मीले होते हैं, वो बड़े डरपोक होते हैं और किसी की तरफ कदम नहीं बढ़ाते और खुद को अकेला कर लेते हैं और चाहते हैं कि लोग उनकी तरफ खुद आएं। लोग अकेलापन महसूस कर सकते हैं या दुखी हो सकते हैं क्योंकि उन्हें जिंदगी में रद्द किया गया, उनके साथ ज्यादती हुई और उनका बचपन
हैबत नाक गुजरा, जैसा कि मेरा और आप में से बहुत सो का। चूंकि मेरे साथ जो कुछ हुआ, मैंने महसूस किया कि कोई भी जगह मेरे लिए मुनासिब नहीं। मेरे दिल में ये बड़ा राज दफन था जो मैं किसी से कह नहीं सकती थी। मैंने महसूस किया कि मुझे किसी ने नहीं समझा। मैं सोच रही हूँ कि आज कितने लोग देख रहे हैं जो महसूस करते हैं कि कोई भी उनको नहीं समझता। जी, खुदा समझता है। और लिखा है कि हमारा एक बड़ा सरदार काहिन है। ये इब्रानियों 4 की 15 से 16 में है। क्योंकि हमारा बड़ा सरदार काहिन यसु हमारी कमजोरियों, लाचारियों और नालायकियों में हमारा हमदर्द है, क्योंकि वो हमारी मानिंद बदन में रहा और हर एक बात से गुजरा जिससे हम गुजरते हैं। मुझे हमेशा इससे तकवीत मिलती है कि यसु मुझे समझता है और वो मुझे जानता है और वो हर वक्त हमारे साथ है और हमसे मोहब्बत करता है। एक शख्स के दुखी और तन्हा होने की वजह तलाक हो सकती है या किसी अपने अजीज का वफात पा जाना। और कई मर्तबा बूढ़े लोग तन्हा महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई और उनके लिए अब कुछ नहीं बचा। लेकिन बात फिर वही है कि जब तक आप जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, खुदा का आपके लिए एक मकसद है, एक मंसूबा है। और हम सब के लिए बेहतरीन बातों में से एक ये है कि हमेशा अपनी जात को भुलाकर देखें कि हम औरों के लिए क्या कर सकते हैं। और मैं जानती हूँ कि मैं हमेशा अपने बहुत से पैगामात में ये कहती हूँ, और शायद आपको लगे कि जॉइस हर बात का जवाब ये नहीं होता। मैं आपको बताती हूँ कि तकरीबन बहुत सी बातों का जवाब यही होता है कि खुद के बारे में ज्यादा ना सोचें, बल्कि औरों के बारे में सोचें जो आप जैसे या उससे भी बुरे हालात में हैं। वो जो जिंदगी के एक से दूसरे मरहले में कदम रख रहे हैं और तन्हा महसूस कर सकते हैं। आप रिटायर हो रहे हैं, आप क्या करेंगे? बच्चे स्कूल मुकम्मल कर चुके हैं, अब वो घर को छोड़ रहे हैं और कॉलेज जा रहे हैं। शायद आपके घर में बहुत से छोटे बच्चे हों और वो स्कूल जाने लग गए हों या पहली जमात में या जो भी है। कुछ वालिदैन ये सोचकर खुश होते हैं कि बिला आखिर उन्हें घर पर कुछ वक्त तन्हा मिल गया। लेकिन मेरा मतलब है, मैंने बहुत सी ऐसी माओं को देखा है जिन्हें बहुत मुश्किल पेश आती है, क्योंकि जिस काम को करते करते उनका दिन गुजरता था अब उसकी जरूरत नहीं रही। यकीनन किसी अपने की जुदाई, जीवन साथी की मौत, बच्चे की मौत, माँ या बाप की वफात या बहन भाई या किसी करीबी दोस्त की वफात किसी के लिए भी बड़े दुख और तबाही का सबब बन सकती है। अगर आप खुदा के पास जाते हैं और शुरुआत ही से उसके आराम को लेते हैं, बजाय अपने तमाम तर नुकसान के मुतालिक सोचने के या अपने रिश्ते की अच्छी यादों, अच्छी बातों के मुतालिक सोचें जो आपकी याददाश्त में हैं और वो आपकी जिंदगी में जितनी भी देर रहे उसके लिए खुश हों। पता है, मुझे समझ आने लगा है और शायद ये अहमकाना लगे कि मैं जितना ज्यादा जहन पर तालीम देती हूँ, मुझे लगता है कि हमारे हर मसले का ताल्लुक जहन से है। इसका ज्यादातर इन्हिसार इस बात पर है कि हम उसे किस निगाह से देखते हैं और उसके मुतालिक किस तरह सोचते हैं। और आप जानते हैं, सच ये है कि जब हम किसी को खो देने का दुख मना रहे होते हैं तो हम खुद पर मातम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये हम हैं जिसने कुछ खो दिया है। अगर वो शख्स मसीह में एक ईमानदार था तो वो बहुत बेहतर जगह पर है और इस बात का इल्म हो तो भी दर्द थम नहीं जाता। और कभी कभार आपको बस दर्द को बर्दाश्त करना और दुख को अपना काम करने देना और खुदा पर भरोसा रखना होता है कि वो आपको इसमें आराम बख्शेगा और आप उसमें से गुजर जाएंगे और गालिब आएंगे और आपके सामने बाकी जिंदगी पड़ी है और खुदा आपके लिए नया मंसूबा रखता है जिसके लिए वो आपको मसा करेगा। उम्मीद रखें। उम्मीद एक मुस्बत रवैया है कि आपके साथ किसी भी लम्हे कुछ अच्छा होने वाला है। एक और वक्त जो कि मुश्किल है वो लोगों के रिटायर होने का है। अब आप नहीं जानते कि खुद से क्या करें, खासकर तब जबकि आपकी ज्यादातर पहचान ही आपके काम से है। फिर आपको ये महसूस होने लगेगा कि आपकी अब कोई कदर नहीं। मैं कौन हूँ? आपकी जात कभी भी आपकी नौकरी नहीं थी। आपको हमेशा अपनी पहचान और अपने काम में फर्क करने के काबिल होना चाहिए। और मैं इस बारे में काफी अरसे से सोच विचार कर रही हूँ। मैं अगर कभी जॉइस मायर मिनिस्ट्रीज की रूह रवा न रही
اور اپنا کام جاری نہ رکھ پائی تو بھی میں ایک اہم شخصیت رہوں گی جس سے خدا محبت کرتا ہے، کیونکہ میں اپنی قدر و اہمیت کو اپنے کام سے نہیں بلکہ مسیح میں اپنی پہچان سے ناپتی ہوں۔ شاید آپ نے کسی ناگہانی آفت میں اپنا گھر کھو دیا ہے۔ تصور کریں آپ نے اپنی ساری چیزیں، سب تصویریں جنہیں آپ نے سالوں سے سنبھال کر رکھا تھا، وہ تحفے جو لوگوں نے آپ کو دیے، کھو دیے۔ آپ کے کپڑے نہیں رہے اور گھر تباہ ہو گیا۔ ذرا سوچیں یہ کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اور میں نے اس بات سے لوگوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے اور وہ گہری مایوسی میں ڈوب جاتے ہیں، لیکن میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہتے ہیں میری زندگی میرے پاس ہے، وہ صرف چیزیں تھیں، میں اور چیزیں بنا سکتی ہوں۔ اس کا زیادہ تر انحصار ہماری سوچ اور برتاؤ سے ہے۔ کبھی کبھی والدین میں فرد واحد ہونا بھی اکیلے پن کا احساس دلاتا ہے، میں سمجھتی ہوں، کیونکہ میں بھی کچھ عرصے کے لیے والدین میں فرد واحد تھی۔ کچھ دیر ایسا ہی تھا جب میرا پہلا بیٹا پیدا ہوا، لیکن شکر ہے خدا نے ڈیو مائر کو میری زندگی میں بھیجا اور ان کی اور میری شادی ہوئی جب میرا بیٹا 1 سال اور چند دن کا تھا اور پورا مہینہ بھی نہیں گزرا تھا، لیکن میں کچھ عرصے کے لیے والدین میں فرد واحد تھی۔ اور جس آدمی سے میری شادی ہوئی وہ کبھی کسی کا والد نہ تھا۔ بہرحال مجھے لگتا ہے کہ میں ہمیشہ سے والدین میں فرد واحد تھی، اور میں جانتی ہوں کہ یہ مشکل ہے۔ مجھے پتا ہے چیزیں مہنگی ہیں اور اپنے طور پر تمام فیصلے کرنا مشکل ہے، لیکن پھر وہی بات کہ خدا آپ کو ہر معاملے میں فضل بخشتا ہے، اور میرا واقعی یہ ایمان ہے کہ اگر آپ والدین میں فرد واحد ہیں تو خدا آپ کو ہر اس کام کے لیے فضل بخشے گا جو آپ کو کرنا ہے۔ وہ آپ کو ایسا فضل عطا کرے گا جو کسی اور کے پاس نہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ برتاؤ اچھا رکھیں۔ دیکھیں یہ مشکل ہوتا ہے کہ ہم خدا کا فضل بھی پائیں اور اپنے حالات کے لیے ہر وقت شکایت بھی کریں۔ اپنے منہ کو خدا کے کلام کے ساتھ ہم آہنگ کرنا شروع کریں اور کہیں میرا ایمان ہے کہ خدا مجھے قوت بخشے گا اور ہر روز مجھے وہ کرنے کی طاقت دے گا جو مجھے کرنا ہے۔ اور باقی لوگوں سے بات کریں، رفاقت رکھیں جو آپ جیسے حالات میں ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ مل کر یہ دکھڑا رو سکیں کہ یہ کتنا مشکل ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ خیالات کا تبادلہ کر کے ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ مشکلات کا سامنا کر سکیں۔ اور پھر میرا ماننا ہے کہ آپ کے بدن میں بیماری اور درد بہت بڑی مشکل ہو سکتا ہے اور آپ بہت تنہا محسوس کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں سے بھرے ہوئے ایک کمرے میں ہیں اور آپ کی کمر میں شدید درد ہے، اتنا کہ برداشت کے باہر ہے، اور باقی لوگ ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا کوئی میرا درد جانتا ہے؟ جی ہاں، یسوع جانتا ہے۔ وہ بخوبی آپ کے درد سے واقف ہے، وہ آپ کو سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں اور اس کا منصوبہ آپ کے لیے اچھا ہے۔ صرف تنہائی کی مرکزی تعریف ترک کر دیا جانا، اور دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ ترک کر دیا جانا کیسا ہوتا ہے۔ آپ آج مجھے دیکھتے ہیں کہ میری زندگی شاندار ہے اور میں ٹیلی ویژن پر لوگوں کو انجیل سنا رہی ہوں اور ساری دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں۔ میں نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں اور خدا کا مجھ پر فضل ہے، لیکن آپ جانتے ہیں میری زندگی میں وہ وقت بھی تھا جب بنیادی طور پر میں بے گھر تھی، لیکن تب بھی مجھے گلی میں سونا نہیں پڑا۔ لیکن جب میں اپنے پہلے بچے کو لے کر ہسپتال سے نکلی تو میرا شوہر، جس سے میں نے پہلی شادی کی، بلکہ جس لڑکے سے میں نے پہلی شادی کی، تب میں 18 سال کی اور وہ 19 سال کا تھا اور ہم دونوں ہی ناسمجھ تھے، اور جب میں حاملہ تھی اس نے مجھے تنہا چھوڑ دیا اور کسی اور عورت کے لیے مجھے چھوڑ دیا، اور جہاں ہم رہا کرتے تھے وہاں سے 2 بلاکس آگے رہنے لگا۔ جب میں بچے کو لے کر ہسپتال سے نکلی تو میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ مجھے لینے کے لیے آیا، مگر اس نے اپنے ایک رشتے دار کو کال کی، ایک عورت جو کہ اس کے بھائی کی بیوی ہوا کرتی تھی مگر اب نہیں، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ مسیحی ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ ہماری مدد کرے کیونکہ وہ ایک اچھی خاتون تھی۔ اس نے ہمیں اپنے گھر پر جگہ دی، لیکن میں تنہا ہو گئی۔ جب میری اس سے شادی ہوئی تو ہم کیلیفورنیا گئے۔ پہلے ہم البکرکی نیو میکسیکو گئے اور ایک رات وہ گھر نہیں آیا اور اس نے مجھے وہاں اکیلا چھوڑ دیا، اور پھر اس نے یہی کچھ کیلیفورنیا میں بھی کیا۔ سو میں جانتی ہوں کہ تنہائی اور ترک کیے جانے کا درد کیا ہے، لیکن آپ آج مجھے دیکھیں، اور یہی کچھ میں آج آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ جو بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہے اس میں پھنس کر نہ رہ جائیں۔
रोएं और वावेला करें। खुदा को बताएं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। जिस मरहले से गुजरना पड़े गुजरें, लेकिन मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद हो। बाइबल कहती है कि जब अब्राहम के लिए कोई उम्मीद बाकी न रही, वो उम्मीद के साथ ईमान लाया कि वो खुदा के वादों को अपनी जिंदगी में पूरा होता देखेगा। जानते हैं, बाइबल में ऐसी बहुत सी हैरान कर देने वाली मिसालें मौजूद हैं। यीशु को सलीब पर तन्हा छोड़ दिया गया और उसने कहा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अंदाजा करें, जरा सोचें कि बागे गतसमनी में उसने अपने शागिर्दों से कहा कि क्या तुम मेरे साथ घंटा भर दुआ नहीं कर सकते, और वो सब सो गए। अंदाजा करें कि वो किस दुख से गुजर रहा था, ये जानते हुए कि वो किन हालात से गुजर रहा है। 12 करीब तरीन दोस्त जिनकी खातिर उसने अपनी जिंदगी उंडेल दी, उसके साथ 1 घंटा भी जाग ना सके कि मिलकर दुआ करें या उसे हौसला दें। बेशक बाइबल कहती है कि यीशु हमें समझता है, क्योंकि वो हमारी ही मानिंद सब बातों में आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। पौलुस तन्हा छोड़ दिया गया। जरा सुने तीमुथियुस 4 की 14 से 17। सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की, खुदावंद उसे उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। उससे तू भी खबरदार रह, क्योंकि उसने हमारी बातों की बड़ी मुखालफत की। मेरी पहली जवाबदही के वक्त वो एक पेशी थी। मेरी पहली पेशी के वक्त किसी ने मेरा साथ न दिया, बल्कि सब ने मुझे छोड़ दिया। काश के उन्हें उसका हिसाब देना ना पड़े। क्या बात है, वो कहता है, सब ने मुझे छोड़ दिया, तन्हा कर दिया। ये तमाम लोग जिनके लिए पौलुस ने अपनी जिंदगी को वक्फ किया, जब उसे उनकी जरूरत पड़ी तो वो वहां ना थे। लेकिन उसकी पहली बात क्या थी कि काश उन्हें इसका हिसाब न देना पड़े। अब सुने, अगर आप ऐसे लोगों के लिए बरकत चाह सकते हैं जिन्होंने आपको तकलीफ दी, तो आपकी जिंदगी में बड़ी बहाली आने वाली है। लेकिन सुने, मगर खुदावन मेरा मददगार था। क्या बात है, देखें भले ही आपको खुदा की हुजूरी महसूस ना हो, आप उसे बदन की आंख से नहीं देख सकते, लेकिन खुदा आपके साथ है। मैं चाहती हूँ आप आज इसे समझें कि खुदा आपके साथ है और वो आपके लिए एक अच्छा मंसूबा रखता है। और हो सकता है कि कुछ खत्म हो गया है, लेकिन इख्तिताम हमेशा नई शुरुआत के लिए जगह बनाता है। क्या आज आप इसको अपने दिल में रख सकते हैं कि इख्तिताम हमेशा नई शुरुआत के लिए जगह बनाता है। मैं आज आपसे ऐसा कुछ नहीं कह सकती जो आपके दर्द को थमा दे और खत्म कर दे, लेकिन अगर आप आगे बढ़कर इस दर्द को एक बेहतर अंदाज में बर्दाश्त करेंगे और खुदा को इसमें साथ लेकर चलेंगे, तो आप दूसरों में खिदमत के लिए तैयार होकर बाहर निकलेंगे। आपको पता है, इब्लीस को सबसे ज्यादा ये बात पागल करती है जब आप इस दर्द को लेकर जो आपने बर्दाश्त किया दूसरों को आराम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि उन्हीं हालात से गुजर रहे हैं जिनसे कभी न कभी आप गुजरे, लेकिन आप हर तरह से छुड़ाए गए हैं। जो बचा है उस पर निगाह करें, ना कि सिर्फ इस पर जो खो दिया। ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक है जो हम करते हैं कि हमेशा खोई हुई चीजों को याद करके उनका तस्करा ही करते हैं और जो कुछ हमारे पास है उसकी फहरिस्त नहीं बनाते। आपके पास हमेशा खुदा की मोहब्बत है। वो कहता है वो आपसे कभी प्यार करना नहीं छोड़ेगा। उसका प्यार बेलौस है। एक लम्हा भी आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं आता कि जब खुदा आपसे मोहब्बत न करे। सो ये ना सोचें कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है और उसका मंसूबा आपके लिए अच्छा है। उस पर निगाह करें जो आपके पास है, ना कि उस पर जो नहीं है। और याद रहे कि वक्त हर शय को बदल देता है। अपनी आंखें मुस्तकबिल पर लगाएं, भले ही आप मुस्तकबिल को देख नहीं सकते कि वो क्या है। आप अपनी निगाहें उस पर लगाकर कह सकते हैं कि मेरा ईमान है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है।